محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ سے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ ایک طویل حدیث ہے. اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے میں اجر ہے. انہوں نے کہا، میں نے اپنی شہوت پوری کی، اس میں اجر کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا بیٹا ہو، پھر وہ بالغ ہو جائے اور تم کو اس سے خیر کی امید بھی ہو، اتنے میں وہ فوت ہو جائے، تو کیا تم ثواب کی نیت کے ساتھ صبر کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس کو پیدا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کو ہدایت دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کو رزق دیا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جماع کے ذریعے حلال کو تلاش کر اور حرام سے اجتناب کر. بس اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو زندہ رکھے گا اور چاہا تو اس کو فوت کر دے گا، اور اس میں تیرے لیے آغاز خبر میں ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. دھان خریداری مراکز کا ضلع کلکٹر نے کیا معائنہ. فصلوں کی خریداری اور پکی رسید اور مکمل ڈیٹا کے اندراج کو عہدیداران یقینی بنائیں. مزید جہیز کے مطالبے نے ایک اور معصوم کی جان لے لی. مزید جہیز کے مطالبے سے تنگ آ کر حاملہ خاتون نے پھانسی لے کر کی خودکشی. ایڈپلی و دیگر مقامات پر مرم کی بلا خوف کھلے عام سمگلنگ. متعلقہ محکمہ خاموش. ماناقیس ملی بھگت کا شبہ. اب خبریں تفصیل سے. ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے مراکز کے منتظمین کو ہدایت دی کہ وہ رجسٹر میں دھان کی خریداری کی مکمل تفصیل درج کرے اور کسانوں سے دھان جمع کرنے کے بعد انہیں رسیدیں دی جائے اور کسانوں کی تفصیل فصل بکنگ ڈیٹا میں درج کر کے چیک کیا جائے. ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے موسرا، چندور اور ورنی منڈل مستقر میں قائم دھان خریداری مراکز کا معائنہ کیا. اس موقع پر کلکٹر نے مراکز کے منتظمین کو ہدایت دی کہ وہ خریداری مراکز کے رجسٹروں میں دھان کی خریداری کی مکمل تفصیلات درج کریں. کسانوں سے دھان جمع کرنے کے بعد انہیں رسیدیں فراہم کی جائے اور فصل بکنگ کے ڈیٹا میں کسانوں کی تفصیلات چیک کی جائے اور متعلقہ مراکز میں اب تک جمع ہونے والے دھان کی مقدار کے بارے میں استفسار کیا. دھان کی کتنی لوریاں چاول ملوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں. کلکٹر نے کہا کہ تمام تفصیلات رجسٹروں میں صحیح درج کی جائے اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر مرکز پر باردان، نمی میٹر اور وزنی مشینیں دستیاب ہوں. کلکٹر نے سینٹر مینیجرز کو مشورہ دیا کہ وہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں تاخیر سے بچنے کے لیے کافی پورٹرز کا تقرر کریں. کلکٹر نے یقین دلایا کہ لاریوں کی قلت کو روکنے کے لیے منصوبہ بند اقدامات کیے گئے اور کسانوں کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کلکٹر نے کسانوں کی جانب سے خریداری مراکز پر لائے گئے خشک دھان کا معائنہ کیا اور کسانوں کو کئی تجاویز دی. کلکٹر نے کہا کہ اچھی طرح سے خشک اور صاف کیا ہوا دھان سینٹرز پر لایا جائے اور پوری امدادی قیمت حاصل کی جائے. کلکٹر نے انکشاف کیا کہ اس بار ضلع میں موجودہ خریف سیزن کے لیے دھان کی خریداری کے لیے 670 سے زیادہ خریداری مراکز قائم کیے جا رہے اور 300 مراکز پہلے ہی دستیاب ہو چکے ہیں. دھان کی کٹائی مکمل ہونے اور دھان کی پیداوار شروع ہوتے ہی متعلقہ علاقوں میں خریداری مراکز قائم کیے گئے. کسانوں کو بغیر کسی پریشانی کے تمام سہولیات فراہم کی جا رہی اور اناج کی خریداری میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے.
कलेक्टर ने कहा कि अगर किसानों की जानिब से लाया गया गल्ला मियार पर पूरा उतरता है तो उसे फौरी तौर पर तोल करते हुए मुकर्रर करदा राइस मिलों को भेजा जाए। तेलंगाना आर्टिन एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिला कन्वीनर पी वेंकटरामलू ने कहा कि हम सीपीएम और अवामी तंजीम के कायदीन की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हैं जो बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए चलो राज भवन प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे और उन्होंने इस महीने की 18 तारीख को मुनक़िद किए जाने वाले बंद में हिस्सा लेने और बाइक रैलियाँ और एहतजाजी रैलियाँ निकालने पर जोर दिया। सीपीएम पार्टी के ज़ेरे एहतमाम दस्तकारी राब्ता कमेटी के ज़ेरे एहतमाम 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने के लिए चलो राजभवन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। निजामाबाद हैंडीक्राफ्ट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बगैर किसी हल के चलो राजभवन प्रोग्राम मुनक़िद करने वालों की गैर कानूनी गिरफ्तारी और पुलिस स्टेशनों में मुंतकिली की सख्त मजम्मत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कन्वीनर पी वेंकटरामलू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बीसी की मरदमशुमारी कराई और पता चला कि वहाँ 57.9% बीसी है। वो तमाम शोबों में पीछे है और बाएं बाजू की जमातों और बाएं बाजू की अवामी तंजीमों की मुसलसिल जदोजहद की तामील में जियो नंबर 9 को तमाम सतहों और तमाम शोबों में बीसी के लिए 42% लागू करने के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस पर अमल नहीं किया और मुख्तलिफ अदालतों में बर्खास्त भी हो रही। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी हुकूमत जिसने EWS के तहत 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है इन आला जातों से पूछे बगैर जिनके पास 15% है समाज में 60% से ऊपर वाले बीसी को नहीं देखती। उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि बीजेपी कायदीन ने बीसी एसोसिएशंस में शमूलियत अख्तियार की और तेलंगाना को ब्लॉक कर दिया, ये कहते हुए कि चोर चोर है, बंद की नीयत दुरुस्त है और हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज में रुकावटें खड़ी करने वाले बीजेपी लीडरों से मुलाकात करने के बजाय सीपीएम पार्टी कारीगरों कोऑर्डिनेशन कमेटी और मजदूर किसान और ज़रूरी मजदूर यूनियन अलग अलग एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान करेगी और इस महीने की 18 तारीख को बंद में शिरकत करेगी। टीम మొత్తం కూడా రాజ్భవన్ దాకా వెళ్ళింది। మేము కూడా రేపు జరగబోయేటువంటి బంద్ కార్యక్రమం చేతి వృత్తాల సమన్వయ కమిటీ కూడా నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటుంది। ఏదైతే బీజేపీ వాళ్ళు బీసీ సంఘాలతో కలిపి చేస్తున్న దానికి బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్నారు, బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్న దాంట్లో మేము పాల్గొన్నాం। దానికి ఈ 42% రిజర్వేషన్ అమలు కాకపోవడానికి ఇచ్చినటువంటి జీవో 9ని డిస్మిస్ చేయడానికి కారణం బీజేపీ ప్రభుత్వమే। बीआरएस पार्टी निजामाबाद जिला सदर साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने राय दहिंदों पर जोर दिया कि वो हैदराबाद जोबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में कार के निशान को वोट दे और एम सुनीता गोपीनाथ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और वोटरों पर जोर दिया कि वो जोबली हिल्स में माजी की तरक्की के सिलसिले को जारी रखें। हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात के दौरान बीआरएस पार्टी के साबिक एमएलए निजामाबाद जिला सदर आशन्ना कारी जीवन रेड्डी ने बीआरएस पार्टी उम्मीदवार एम सुनीता गोपीनाथ की हिमायत में शेखपेट डिवीजन के तहत बीजेआर कॉलोनी और जिम में मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने राय दहिंदों को हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए केसीआर की जानिब से बीआरएस पार्टी की हुकूमत के दौरान की गई कोशिशों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार एम सुनीता गोपीनाथ भारी अक्सरियत से कामयाब हो और जुबली हिल्स में तरक्की का सिलसिला जारी रखे। कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 2 सालों में मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए वाजिबुल अदा रकम के बारे में अवाम को आगाह करते हुए कांग्रेस के वाजिबात कार्ड तकसीम किए। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कारकुन हाफिज़ सफ़ीउल्लाह पर हमले की शदीद मज़म्मत। आरमूर एसीपी से मुफ्ती सईद अकबर हाफिज़ मोहम्मद लई खान की मौसे नुमाइंदगी। नकाबपोश नामालूम अफराद पर एफआईआर दर्ज और पुलिस तहक़ीक़ात में मसरूफ़। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नए इंचार्ज पर 5 नौजवानान ने हमला करते हुए मोबाइल फ़ोन, रकम और जेब में मौजूद ज़रूरी दस्तावेज़ात खींच ले गए और संगीन किस्म की धमकियां दी गई, जिसके खिलाफ मुफ्ती सईद अकबर साहब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद, हाफिज़ लई खान साहब नायब अमारत इस्लामिया हिंद के हमरा आरमूर एसीपी से मुलाकात करते हुए हालात से वाकिफ करवाया और कहा कि हाफिज मिर्जा सफीउल्लाह बेग को आरमूर का इंचार्ज बनाया गया।
वो अपने काम से वापस निजामाबाद हो रहे थे कि सत्याग्रह फंक्शन हॉल के रूबरू 5 नौजवानों ने उनकी गाड़ी रोककर उनका फोन, पर्स वगैरह खींच लिए और आइंदा आरमूर आने पर संगीन नतायज की धमकी दी गई, जिस पर हाफिज साहब घबरा गए। खौफ वो हिरास का शिकार हो गए। हाफिज लई खान से राब्ता किया और हाफिज मोहम्मद लई खान की मौसिर नुमाइंदगी पर आरमूर एसीपी ने सख्त एक्शन लेने का वादा किया। फौरी ईडी पार्टी को तलब किया, तेजी से तहकीकात करने का हुक्म दिया। हाफिज मोहम्मद लई खान ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के काम करने वालों की मुखालिफत करना गोया के अल्लाह के अज़ाब देना है। सवाल किया कि चाहते हैं कि ख़त्म नबूवत का सेंटर आरमूर से बंद हो जाए और यहाँ बातिल, फर्क खादियानी और शकीली खुलेआम मुसलमानों की ईमान पर डाका डाल सके, या फिर यहाँ के देहातों के मसाजिद व मकातिब वीरान हो जाए। ख़त्म नबूवत के काम करने वालों का ताउन करना चाहिए, ना कि उनसे दुश्मनी। लिहाजा इस तरीके की निचली वो घटिया हरकतें करने वालों की हम सख्त तरीन मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एसीपी आरमूर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए गुनाहगारों को सजा दिलाएंगे और आइंदा इस किस्म के हालात पैदा होने से रोकने की कामयाब सही करेंगे। इस मौके पर मुफ्ती सईद अकबर साहब के अलावा हाफिज लई खान, मिर्जा असमतुल्लाह बेग, शरिया बोर्ड निजामाबाद, हाफिज मुजीब अहमद खान, मौलाना सैयद अमादुद्दीन, मौलाना शजाउर रहमान तलहा, अब्दुल रहमान सेक्रेटरी मरकजी कमेटी आरमूर, हाफिज मोहम्मद शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा आरमूर, मोहम्मद यूसुफ अली, हाफिज सफीउल्लाह, इमरान जाबरी, सैयद जफर, हामिद अली और दीगर भी मौजूद थे। 9:30 और 10 के दरमियान में हाफिज़ मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब, जो कि आरमूर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाज़िर और इंचार्ज हैं, वो अपना काम करके यहाँ से वापस हो रहे थे, निज़ामाबाद के लिए वापस हो रहे थे। आरमूर रोड पर, आरमूर में जो निज़ामाबाद रोड पर ईदगाह है, ईदगाह के बिल्कुल रूबरू इनको चंद 3 गाड़ियों पर 5 अफराद आए और अपने चेहरे पर मास्क और कपड़ा लपेटे हुए थे। इनको इनकी गाड़ी रुकाए हाफिज़ साहब की और उनके साथ धमकी आमेज़ पूरा लहजा रवैया इख्तियार किए। इनका मोबाइल खींच लिए, इनकी पॉकेट खींच लिए, इनके पैसे खींच लिए और उनको ये धमकी दी गई कि आइंदा अगर इधर नज़र आएंगे तो अच्छी बात नहीं। इसके पर आज हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सदर मोहतरम आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ में यहाँ पर आए हैं एसीपी आरमूर के पास ये शिकायत दर्ज कराने। इससे पहले भी एक यहाँ के इंचार्ज उनके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी इस किस्म की शरारत कर रहे हैं, इससे बाज आ जाए। आप किसको सता रहे, किसको तकलीफ़ दे रहे, ये इतना ऊंचा काम है। अक़ीदे तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अगर आप तकलीफ़ देंगे, देहातों में मंडलों में जो काम करने वाले अरकान हैं, उन लोगों को जो सताया जा रहा है, अगर ये बंद नहीं हुआ तो फिर इनके ऊपर जितने लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उनको ये काम करने वालों को अगर सताएंगे तो ऐसा है कि दुनिया वाले तो कोई बदला ले या ना ले, अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर आएगा। इसलिए कि आप किसको तकलीफ़ दे रहे, कौन सा काम करने वालों को सता रहे। अरे मुफ्ती साहब के तहत में जितने मकातिब चलते हैं, वो उसी की तकमील में और उसी के इंतज़ामात में मसरूफ़ रहते हैं। ऐसे लोगों को आप ज़हनी और क़ल्बी अज़ियत पहुँचा रहे हैं और ये जो ऊंचा काम है, नामूस रिसालत की हिफाजत और अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत, देहातों में मकातिब और मकातिब कुरानिया बच्चों को तालीम देने के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम, इनके काम करने वाले अरकान के साथ ऐसा रवैया होगा और इनको अगर आज हम साथ नहीं देंगे और ये जालिम लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, बल्कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हम इस वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़या किया गया इंतहाई घिनौना अमल है कि दीन का काम करने वालों के साथ इस तरह, इनसे कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं, ये रहने वाले बोधन के हैं या 2 महीने से इंचार्ज है। अरे आप क्या चाहते हैं, क्या यहाँ पर ख़त्म नबूवत का जो सेंटर है आप बंद कराकर आरमूर हल्के के मंडलों में दीनी तालीम को रुकाना चाहते हैं, या आरमूर हल्के में जो
मजहबी तौर पर ईसाइयों की या दीगर कादियानियों की जो तहरीक चल रही है उसको मजबूत करना चाहते हैं। जमजम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स से एक और काफिले की रवानगी। जमजम ट्रैवल्स को बदनाम करने से बाज आ जाएं। हाफिज अब्दुल रशीद तजम्मुल। आज़मीन उम्रा तमाम उमूर की बेहतर अदायगी करे। हाफिज आरिफुल्लाह। आज़मीन उम्रा तस्वीर कशी ना करे। हाफिज मोहम्मद लई खान का बयान। निज़ामाबाद शहर की मशहूर व मारूफ और बाएतमाद जमजम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से बातारीख 16 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात बामुकाम ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल से इमाम खतीब मस्जिद कचियान हाफिज अब्दुल रशीद तजम्मुल की ज़ेरे निगरानी बड़ा काफिला रवाना हुआ। हाफिज आरिफुल्लाह इमाम खतीब मस्जिद रहमानिया ने खिताब करते हुए आज़मीन उम्रा को तमाम उमूर से तफसीली तौर पर वाकिफ कराते हुए ख्वाहिश की कि आज़मीन उम्रा हर उमूर को खुशू व खुजू के साथ अंजाम दें। उन्होंने उम्रा के तमाम उमूर को तफसीली तौर पर वाकिफ कराते हुए हाफिज अब्दुल रशीद तजम्मुल की ज़ेरे निगरानी रवाना होने वाले काफिले को मुबारकबाद पेश की। हाफिज मोहम्मद लई खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया ने खिताब करते हुए तमाम आज़मीन उम्रा से पुरखुलूस ख्वाहिश की कि वो खुलूस नियत के साथ उम्रा अदा करे और अंदरून हरम तस्वीर कशी खतई ना करे। हाफिज अब्दुल रशीद तजम्मुल ने दुआ करते हुए तमाम आलम इस्लाम की सलामती और मुसलमानों पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत के लिए दुआ फरमाई। हाफिज अब्दुल रशीद तजम्मुल ने जमजम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की आज़मीन उम्रा के लिए खिदमात को मिसाली बनाते हुए बदनाम करने से बाज आ जाने का मशवरा दिया। उन्होंने माह रमज़ान मुबारक में जमजम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमात से ज़्यादा इस्तिफादे की ख्वाहिश की। प्रोप्राइटर्स जमजम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जनता रहीम मंसूर अहमद अरशद बिन सईद की ज़ेरे निगरानी आज़मीन उम्रा के काफिले की रवानगी और वापसी तक तमाम उमूर की निगरानी करते हुए बेहतरीन इंतजामात किए गए। जमजम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स से उम्रा की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद अरशद बिन सईद के फ़ोन नंबर 9666664222 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। एरपल्ली मंडल में मुरम की गैर कानूनी स्मगलिंग बिला रोकटोक जारी। सैकड़ों टिप्पर गैर कानूनी तौर पर मुरम की नकलो हमल के बावजूद रेवेन्यू और पुलिस जिस तरह काम कर रही गोया वो इस पर नजर नहीं डाल रही। इससे कई शुकूक पैदा होते हैं। एड़पली मंडल के जंकमपेट और मलकापुर गांव के मज़ाफात में कुछ लोग मुरम की खुदाई कर रहे। परमिट से जायद मुरम खोदा जा रहा। मुरम को जेसीबी की मदद से खोदकर रोजाना सैकड़ों टिप्परों में दूसरे इलाकों में मुरम को मुंतकिल किया जा रहा। आए रोज ओवरलोड मुरम टिप्परों के वहां जाने की वजह से सड़क खराब हो चुकी है। मुरम के ताजिर जिले के कई इलाकों में टेलों को तबाह कर रहे। वो पैसे कमाने के लिए गैर कानूनी तौर पर मुरम की खुदाई कर रहे और मुरम को टिप्परों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा। मुरम के ताजिर जंकमपेट के मसाफात में टेलों को तबाह कर रहे। टेले अपने आसार खो रहे क्योंकि रोजाना सैकड़ों टिप्पर मुरम को ले जा रहे। ताजिर गैर कानूनी तौर पर मुरम की खुदाई करते हुए निजामाबाद शहर और दीगर मुकामात पर मुंतकिल कर रहे और लाखों रुपये कमा रहे। मुरम की गैर कानूनी खुदाई के बावजूद हुक्काम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे इल्जामात है कि जंकमपेट के मसाफात में रेवेन्यू ओहदेदारों की निगरानी में मुरम रैकेट चल रहा। इसका कोई नोटिस न लेने पर अवाम मुतल्लिका हुक्काम को तनकीद का निशाना बना रहे। अवाम का मुतालबा है कि आला हुक्काम जवाब दे और गैर कानूनी मुरम की खुदाई के खिलाफ कार्रवाई करें। इजाफी जहेज की हिरासानी से दिल बर्दाश्ता हामिला खातून ने खुदकशी कर ली। हामिला खातून ने 2 बच्चों के सामने खुद को फांसी पर लटका लिया। बीरपुर मंडल के तिम्मापुर तांडा में पेश आया वाकया। कामारेड्डी जिले के बीरपुर मंडल के तिम्मापुर तांडे में एक हौलनाक वाकया पेश आया। बीरपुर एसआई महेंद्र और मुकामी अवाम के मुताबिक तिम्मापुर गांव के इस संतोष की शादी 5 साल कबल वर्नी मंडल के सेवालाल तांडा की नागरानी से हुई थी। उस वक्त उसे 1 लाख
जहेज दिया गया था। नागरानी को 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र 3 साल और 1 साल है। जरिए मजदूर के तौर पर काम करने वाले संतोष ने कुछ अरसे से कोई काम नहीं किया और वो अक्सर अपनी बीवी को इजाफी जहेज लाने के लिए हिरासा करता था। जुमे की सुबह जोड़े के दरमियान झगड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद संतोष और उसकी मां दूसरे कमरे में चले गए, जबकि नागरानी और उसके 2 बच्चे कमरे में ही रहे। नागरानी जो 4 माह की हामिला थी बहुत परेशान हो गई और दरवाजा बंद करते हुए अपने बच्चों के सामने फांसी लगा ली। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी ने आकर देखा। जब तक नागरानी पहले ही खुद को फांसी लगा चुकी थी, इसलिए उन्होंने दरवाजा तोड़ा और नाश को नीचे उतारा। नागरानी के वालिदैन और रिश्तेदारों को मामले का इल्म हुआ और उन्होंने संतोष पर हमला किया। सब इंस्पेक्टर महेंद्र ने बताया कि संतोष को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। అంటే దాన్ని 1 గంట కూడా కాలేదు అని అక్క కూడా మాట్లాడింది, బావ కూడా మాట్లాడిండు, గంట కూడా కాలేదు చంపేసిండు. ఏం చెప్పాలి, అర్ధ గంటలోనే చచ్చిపోయాలని ఫోన్ చేసింది. మళ్ళీ ఎట్లా చచ్చిపోతే ఉరి వేసుకున్నది అన్నారు. ఉరి ఆడ అది దెబ్బతో చంపేసిండు. రాడు సలాక్తో కొట్టిండు. నా పిల్లలు ఉన్నాయి, ఇక గర్భతోని ఉన్నది, 3 నెలల 4 నెలల పూట ఉంది. ఏడసుకుంటా ఫోన్ చేసింది చిన్న పాప, నా తల్లి కొడుతున్నా అని కొట్టుతా అంటే रियासती सदर बी अनिल ने कहा कि मुख्तलिफ अवामी तंजीमों में काम करने वाले कायदीन को आर्जी जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिले के आरएनबी गेस्ट हाउस में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए AIPSU रियासती सदर जी अनिल ने कहा कि इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी की रियासती कमेटी का इजलास हैदराबाद के नाचराम में मुनाकिद हुआ। उन्होंने कहा कि इस रियासती कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ अवामी तंजीमों में काम करने वाले लीडरों को RSP पार्टी में आने वाले लीडरों को पार्टी के नजरिए और प्रोग्रामों से मुतासिर होकर और अवाम के दरमियान इसके काम करने के तरीकों को देखकर अवामी मसाइल पर लोगों में मुसलसिल बेदारी पैदा करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती कमेटी ने पार्टी को अवाम के दरमियान मजीद ले जाने के लिए काम करने की आर्जी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें जिला निजामाबाद में काम करने के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि रियासती कमेटी ने अवामी तंजीमों में काम करने वाले के रामलू को RSP निजामाबाद सिटी कन्वीनर और P नरेश को RYF युद्ध एसोसिएशन जिला कन्वीनर की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। RSP పార్టీలో చేరడం జరిగింది। RSP పార్టీ 12వ డేట్ నాడు ఆదివారం, ఈ నెల 12వ డేట్ నాడు ఆదివారం నాడు రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశం జరిగింది। ఆ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశంలో ప్రధానంగా నిజామాబాద్ నగర కన్వీనర్గా కటారి రాములు గారిని, అదే రకంగా RYF జిల్లా కన్వీనర్గా పిట్ల నరేష్ గారిని కూడా ఎన్నుకున్నట్టు పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి జానకి రాములు గారు నియామక పత్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ నియామక పత్రాన్ని ఇచ్చిన దాన్ని ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో RNB గెస్ట్ హౌస్లో నియామక పత్రాలు ఇస్తూ ఈరోజు పత్రికా విలేకరుల సమక్షంలో వారిని కటారి రాములు గారిని నగర కన్వీనర్గా, అదే రకంగా RYF जिला कन्वीनर। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। धान खरीदारी मराकज का जिला कलेक्टर ने किया मुआयना। फसलों की खरीदारी और पक्की रसीद और मुकम्मल डेटा के इंदराज को ओहदेदारान यकीनी बनाए। मजीद जहेज के मुतालिबे ने एक और मासूम की जान ले ली। मजीद जहेज के मुतालिबे से तंग आकर हामिला खातून ने फांसी लेकर की खुदकशी। एडपल्ली व दिगर मुकामात पर मुरम की बिला खौफ खुलेआम स्मगलिंग, मुतल्लिका महकमा खामोश, मानाकैस, मिली भगत का शुबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।